Welcome everyone. Here I am discussing annual examination of Delhi Public School. So firstly instructions are given to us. This question paper contains two parts A and B. Both part A and part B have internal choices. Part A consists of two sections, first and second. First section mein there are 16 questions of 1 mark each and section 2 has 4 questions on case study. Each case study has 5 case-based subparts and we have to attempt any 4 out of 5 subparts. Part B contains very short answer type questions of 2 marks, short answer type questions of 3 marks and long answer type questions of 5 marks. Internal choices provided and calculator we cannot use. Right, so let's start the paper. Question number 1. Subtract root 2 minus 3 root 3 from 2 root 2 plus 3 root 3. So we have to subtract this from this, मतलब इसमें से ये subtract करना है तो कर देते हैं 2 root 2 plus 3 root 3 minus क्या minus करना है root 2 minus 3 root 3 है ना. तो क्या आ गया 2 root 2 plus 3 root 3 minus root 2 minus minus plus 3 root 3. लाइक टर्म्स को कंबाइन किया 2 root 2 minus root 2 क्या बन गया root 2. 3 root 3 plus 3 root 3 क्या आ गया 6 root 3. So this is the answer. Question number 2. Write an example of a binomial of degree 30. So we have to write a binomial. Binomial क्या होता है? Polynomial with two terms. So we have to write two terms and degree should be 30. Degree 30 का क्या मतलब है? Highest power of the variable should be 30. So let variable x है तो उसकी highest power 30. Second term कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, से मैंने ले लिया 2. सो x to the power 30 plus 2 is a binomial of degree 30. Next question. Find the value of the polynomial p of x is equal to 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 3. So polynomial की वैल्यू निकालनी है at x is equal to 3. तो क्या करते हैं x की जगह यहाँ 3 पुट कर देते हैं, है ना. क्या आ जाएगा p of 3 is equal to 5 into 3 that is 15 minus 4 into 3 square मतलब 4 into 9 that is 36 plus 3 क्या आ गया minus 18. So this is the answer. Question number 3. Cost of a pen is 3.5 times the cost of a pencil. Express this situation as a linear equation in two variables by taking cost of pen as x and cost of pencil as y. तो हमें पता है cost of pen क्या है x and cost of pencil क्या है y. अब condition क्या है cost of pen is 3.5 times the cost of pencil. So x is 3.5 times the y. ठीक है तो क्या आ गया x is equal to 7/2y. लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, क्या आएगा 2x minus 7y is equal to 0. So this is the required linear equation. Next question. If a comma minus 1 lies on the graph of 3x minus 2y plus 4 is equal to 0, then find the value of a. Now if this point lies on the graph of this equation, then definitely a point इस equation को satisfy करेगा. तो satisfy करेगा तो a की जगह रखा x की जगह रखा a and y की जगह रखा -1. So क्या आ गया 3a minus 2 y की जगह -1 plus 4 is equal to 0. So 3a plus 2 plus 4 is equal to 0.
ए कितना आ गया -2. सो दिस इज द आंसर. Question number 4. If the coordinates of the 2 points are -7, 5 and -6, -9, then find the value of ordinate of P minus ordinate of Q. So 2 points are given to us, P and Q. P -7, 5 and ये obviously क्या है, Q. ठीक है, -6, -9. We have to find this value ordinate of P minus ordinate of Q. Ordinate of P का क्या मतलब है, y coordinate of P. y coordinate of P कितना है 5 minus ordinate of Q means y coordinate of Q क्या है -9. So क्या आ गया 5 plus 9 that is 14 is the answer. Question number 5. Find the measure of an angle which is 28 degree less than its complementary angle. So मान लो angle क्या है x. Now this angle is 28 degree less means -28 degrees. अब किससे लेस है, than its complementary angle. complementary angle कितना होगा, अगर एंगल x है तो उसका complementary angle कितना होगा 90 डिग्री माइनस x, राइट. तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं. क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 28 दैट इज 62 इन डिग्रीज. x कितना आ गया 31 डिग्री. सो द एंगल इज 31 डिग्री. दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. If in triangle ABC, angle A is equal to angle B plus angle C, then write the shape of the given triangle. So एक triangle है ABC. ठीक है, और angle A is equal to angle B plus C. तो कैसे बताएं भाई शेप. एक चीज हमें पता है एंगल्स के बारे में, दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड एंगल बी प्लस एंगल सी तो एंगल ए के इक्वल है. सो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए कितना आ गया 90 डिग्री. सो एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये ट्राइंगल कैसी है, right angle triangle. So the shape of given triangle is right angle. All right. Question number 7. A quadrilateral has 3 acute angles, each measuring 65 degree. Find the measure of the fourth angle. सो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स की बात हो रही है, जिसमें से 3 एंगल्स आर 65 डिग्री ईच एंड फोर्थ एंगल हमें फाइंड करना है. एंड वी नो द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज. सो 65 डिग्री फर्स्ट एंगल प्लस 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस फोर्थ एंगल मान लेते हैं x. दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, राइट. तो यहाँ से क्या आ गया 195 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज एंड x कितना आ गया 165 डिग्रीज. सो दिस इज द फोर्थ एंगल, हेंस इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. इफ हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्रिपल्ड एंड बेस इज डबल्ड, देन व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सो एक ट्राइंगल है, उसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस, लेट बेस इज b, इंटू हाइट एंड हाइट इज h, राइट. अब उसकी हाइट इज ट्रिपल्ड एंड बेस इज डबल्ड, तो न्यू एरिया देखते हैं कितना आएगा. हाफ इंटू बेस डबल कर दिया, सो 2b इंटू हाइट
ट्रिपल कर दी इंटू 3h। ठीक है, क्या आ गया 6 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच वॉज ओल्ड एरिया, सो 6 से न्यू एरिया इज 6 times the old area, right? Question number 9. In the given figure, O is the center of the circle with radius 5 centimeter and OP is perpendicular to chord AB. OP is perpendicular to chord AB. If OP is equal to 3 centimeter, then find the length of the chord AB. अब OP अगर perpendicular है from center on the chord, then it will definitely bisect the chord, मतलब AP is equal to PB. अब हम AP लेंथ निकाल लेते हैं, उससे AB लेंथ तो आ ही जाएगी. ठीक है, अब AP लेंथ कैसे निकालें? दिख रहा है भाई AP इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ रही है, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AP निकाल सकते हैं. वैसे तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट याद ही होता है. AP बताओ कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर, है ना. 3 4 5 ही तो होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट. सो अगर AP 4 सेंटीमीटर है, AB कितनी होगी? उसकी डबल, मतलब 8 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज 8 सेंटीमीटर. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स. सो ये स्कोर्स गिवन है, मॉड फाइंड करना है. मॉड क्या होता है? हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी. सो देख लेते हैं हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है. 14 2 टाइम्स आ रहा है, 25 जस्ट 1 टाइम, 23 1 2 3, 23 3 टाइम्स आ रहा है, सो मे बी 23 3 टाइम्स, 28 जस्ट 1 टाइम, 18 1 2 3, 18 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 17 जस्ट 1, 22 जस्ट 1. सो मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 23 एंड 18. इन फैक्ट दिस इज बाई मॉडल डेटा जिसके दो मॉड्स हैं, 23 एंड 18, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 10 numbers is 20. If 5 is added from every number, what will be the new mean? So अगर 5 हर एक नंबर में ऐड हो गया, डेफिनेटली मीन क्या हो जाएगा? 20 plus 5. So the mean is 20 plus 5, that is 25. This is the answer. Question number 11. In a sample study of 642 people, it was found that 514 people have a high school certificate. If a person is selected at random, find the probability that the person does not have a high school certificate. So we have to find the probability of an event, and इसमें 642 people पर एक स्टडी हुई जिसमें से 514 पीपल हैव अ हाई स्कूल सर्टिफिकेट. सो नंबर ऑफ पर्सन हु डज नॉट हैव अ हाई स्कूल सर्टिफिकेट कितने होंगे? 642 माइनस 514, दैट इज 128, राइट. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन डज नॉट हैव high school certificate. Right, वो क्या होती है? Number of trials in which the event happen upon total number of trials. Total number of trials तो हमें पता ही है भाई, जितने लोगों पे स्टडी हुई है कितने हैं वो? 642. And number of trials in which the event happen, मतलब number of person who does not have a high school certificate कितने हैं? अभी कैलकुलेट किए 128. So the probability is 128 upon 642. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, क्या आ गया? 64 upon
321. This is the answer. Next question. Compute the probability of the occurrence of an event if the probability of not occurring of the event is 0.66. So अब कोई भी event है, either the event will happen or it will not happen, right? So probability of occurrence of an event plus probability of non-occurrence of the event is equal to 1. Probability of occurrence हमें find करनी है and probability of non-occurrence हमें दी हुई है 0.66. So probability of occurrence कितनी होगी? 1 minus 0.66, that is 0.34. This is the answer. Question number 12. Find the zeros of the polynomial q of x is equal to 1 minus 3x. Right? So zero of this polynomial find करना है, मतलब ऐसा नंबर जो इसको क्या बना दे? Zero. अब वो नंबर कौन सा है? 3x is equal to 1. So x is equal to 1 upon 3. अब 1 upon 3 जब यहाँ put करेंगे, the polynomial will be 0. So this is the zero of polynomial. Hence is our answer. Question number 13. PQRS is a parallelogram. एक parallelogram given है. PQRS, in which PQ is equal to 12 centimeter and its perimeter is 40 centimeter. Find the length of each side of parallelogram. So एक side तो पता ही है 12 centimeter. अब भाई अगर PQ 12 centimeter है तो SR भी कितनी होगी? 12 centimeter. क्यों? Opposite sides of a parallelogram are equal in length, right? अब दो sides पता चल गई. PS और QR फाइंड करनी है. मान लिया PS x है तो QR भी कितनी होगी? x. अब पेरीमीटर दिया हुआ है, उसका फायदा उठाते हैं. पेरीमीटर क्या होगा? 12 प्लस x प्लस 12 प्लस x. दिस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. मतलब 24 प्लस 2x इज इक्वल टू 40. सो x कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर. राइट. सो साइड्स क्या हो गई? PS हो गई 8 सेंटीमीटर एंड QR भी कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर. So these are the sides of parallelogram. Question number 14. Write the perpendicular distance of the point P 3,4 from the x-axis. तो x-axis से perpendicular distance क्या होता है? Y coordinate and y coordinate is 4. So distance is 4 units. Right? Next question. In which quadrant do the given points lie? So first point is -4,5. ये coordinate plane है. X coordinate negative and y positive means second quadrant. Next 7, -2. X coordinate positive and y coordinate negative means कौन सा quadrant? Fourth quadrant. Right? Question number 15. Express 5x minus 2y is equal to 6 in the form ax plus by plus c is equal to 0. Also, write the values of a, b and c. So we have to write this in the form ax plus by plus c is equal to 0. तो लिख देते हैं 5x minus 2y, constant term भी इसी side, that is minus 6 is equal to 0. Right? This is of the form ax plus by plus c is equal to 0. a, b, c की वैल्यू निकाल लेते हैं कंपेयर करके. a is x का कोफिशिएंट means 5. b is y coefficient, that is -2, and c is the constant term, that is -6. So these are the values of a, b and c. Question number 16.
the probability of guessing the correct answer to a certain question is x upon 2. If the probability of not guessing the correct answer is 3 upon 5, then find x. अब कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर या तो हम करेक्ट गेस करेंगे या फिर करेक्ट गेस नहीं करेंगे. मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ guessing the correct answer plus probability of getting incorrect answer is 1. ठीक है, probability of guessing the correct answer कितनी है, x upon 2 plus probability of guessing incorrect answer कितनी है, 3 upon 5. This is equal to 1. So x upon 2 is equal to 1 minus 3 upon 5, that is 2 upon 5. तो x कितना आ गया, 4 upon 5. So this is the answer. Right? So let's start section 2, case study questions. Question number 17. Rainwater harvesting is a technology that collects and stores rainwater for human use. Anoop decided to do rainwater harvesting. He collected rainwater in an underground tank at the rate of 40 centimeter cube per second. Right? First question. What will be the equation formed if volume of water collected in x seconds is taken as y centimeter cube? Right? So हमें पता है 40 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से वाटर कलेक्ट हो रहा है, मतलब इन 1 सेकेंड वी आर कलेक्टिंग 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. अब उसने पूछा है x सेकेंड्स में y सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है, तो इक्वेशन बनाओ. अब अगर 1 सेकेंड में 40 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है तो x सेकेंड्स में कितना होगा, 40x सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू y. ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई, 40x इज इक्वल टू y, मीन्स ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फॉर्म्ड. अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनी है, उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. Means the correct answer is option D. Next question. Write the equation in standard form. Equation क्या थी हमारे पास, 40x is equal to y. Standard form में क्या होगी, 40x minus y plus 0 is equal to 0. Right? Means कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन A. Next question. How much water will be collected in 60 seconds? 60 seconds में देखते हैं. अभी अभी देखा था 1 सेकेंड में 40 सेंटीमीटर क्यूब कलेक्ट हो रहा है, तो फिर 60 सेकेंड्स में कितना होगा, 60 into 40, that is 2400 centimeter cube. Means the correct answer is option D. Next, how much time will it take to collect 800 centimeter cube of water? अभी अभी देखा था 40 सेंटीमीटर क्यूब कितनी देर में हो रहा है, 1 सेकेंड. तो 800 सेंटीमीटर क्यूब कितनी देर में होगा, 1 upon 40 into 800 सेकेंड्स. ठीक है, कितना आ गया ये, 20 सेकेंड. मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 18. Our maths teacher knows yoga. She asked Chiku to show yoga postures. She made marks on angles. She showed acute, obtuse and right angle through yoga postures. First question is, the exterior angle of a triangle is equal to. Exterior angle property याद है, exterior angle of triangle किसके equal होता है,
sum of two interior opposite angles, which is option A. Next question, the value of m is, m ये रहा, ये इस ट्राइंगल का पार्ट है और 144 डिग्री इसका एक्सटीरियर एंगल है, राइट? अभी अभी हमने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल दैट इज 144 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, मतलब इज इक्वल टू m डिग्री प्लस 65 डिग्री. सो यहाँ से m कितना आ गया, 144 minus 65, that is 79 degrees. Means the correct answer is option D. Next question. The measure of angle x in the following figure is. अब ये एक right angle है, मतलब 35 डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. ठीक है, तो यहाँ से 4x कितना आ गया, 90 माइनस 62. सो 4x इज 28 डिग्रीज एंड x कितना आ गया, 7 डिग्री. ठीक है, मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन फिगर इज. अब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ये है एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन्स, मीन्स 2 इंटू वाई माइनस 15 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस 56 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ से 2y माइनस 30 प्लस 48 प्लस 56 दैट इज 2y प्लस 104 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री. y कितना आ गया यहाँ से, 53 डिग्रीज. Means the correct answer is option D. If two parallel lines are intersected by a transversal, then interior angles on the same side of transversal are. भाई इन एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, मतलब एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री. मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Question number 19. Sita wanted to make a jewelry box to gift her friend Rita on her birthday. She made the jewelry box of wood in the shape of a cuboid. The jewelry box is 40 centimeter long, 20 centimeter broad and 30 centimeter in height. The rate of painting the box is rupees 2 per centimeter square. After making the box, she took help from her friends to decorate the box. The black color was painted by Rammi on top and bottom. Green color by Akash on front and back, and yellow color was painted by Riya on the side surfaces. First question is, the capacity of jewelry box is. तो इसकी कितनी कैपेसिटी है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट? तो क्या आ गई, लेंथ हमें पता है 40, ब्रेड्थ पता है 20 एंड हाइट पता है 30. ठीक है, तो कैपेसिटी कितनी आ गई, 24,000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. ठीक है, तो ये कितना होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स 40 इंटू 20, 800 plus breadth into height 20 into 30, 600 plus height into length means 30 into 40 means 1200. तो ये कितना आ गया, twice of 2600 means
5200 centimeter square. Means the correct answer is option A. Next question, the cost of coloring the boxes. हमें पता है that rate of painting the boxes ₹2 per centimeter square. Means 1 centimeter square के लिए ₹2 लग रहे हैं और हमने टोटल कितना एरिया पेंट किया है अभी अभी कैलकुलेट किया 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे लगेंगे 5200 इंटू 2 दैट इज ₹10400. मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया पेंटेड बाय रम्मी इज. रम्मी ने the black color was painted by Rummy on top and bottom surface. ये रम्मी ने पेंट किया. तो देख लेते हैं कितना एरिया भाई. टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया. टॉप का कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ 40 इंटू ब्रेड्थ 20 और बॉटम का भी इतना ही होगा तो इसका ट्वाइस. ठीक है, कितना आ गया ट्वाइस ऑफ 800 मीन्स 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर वॉज पेंटेड बाय रम्मी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया पेंटेड इन ग्रीन एंड येलो इज. अब ग्रीन में फ्रंट और बैक पेंट हुआ है और साइड्स मतलब 4 वॉल्स पेंट हुई है. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेते हैं. वो तो हमें पता ही कितना होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट. सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ. कितना है 40 प्लस 20 मीन्स 60 और हाइट हमें पता कितनी है 30. तो ये कितना आ गया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर. So area painted in green and yellow is 3600 centimeter square. Means the correct answer is option D. Question number 20. Different types of cartoon channels preferred by 400 children among the age group 6 to 10 years are depicted in the bar graph shown below. First question is the ratio of the highest watched channel to the least watched channel is. तो highest सबसे बड़ा बार ग्राफ कार्टून नेटवर्क, कितने लोग देख रहे हैं मतलब कितने बच्चे 120. एंड लीस्ट कहाँ है सबसे छोटा बार ये रहा पोगो, कितने बच्चे देख रहे हैं 40. तो रेशियो ऑफ हाईएस्ट वॉच चैनल टू द लीस्ट वॉच्ड क्या होगी 120 रेशियो 40 दैट इज 3:1. मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन वॉचिंग डिज्नी चैनल इज. डिज्नी कितने बच्चे देख रहे हैं 60. So the correct answer is option D. The probability of children watching geography channel is. Geography channel कितने बच्चे देख रहे हैं 100 and total बच्चे कितने हैं 400. So the probability will be 100 upon 400 that is 1/4. Means the correct answer is option A. Next question, the number of children watching Cartoon Network channel more than Disney channel is. अब Disney 60 बच्चे देख रहे हैं and Cartoon Network 120 children are watching. So difference कितना हुआ 60. ठीक है ना 60 children ज़्यादा है जो Cartoon Network देख रहे हैं. Means the correct answer is option D. Total number of children
watching both Discovery Kids channel and Geography channel is? Discovery Kids कितने देख रहे हैं? 80 and Geography कितने देख रहे हैं? 100. So कितने हो गए total? 80 plus 100, that is 180. Means the correct answer is option A. Question number 21. If x is equal to root 2 plus 1, find the value of x minus 1 upon x. तो x की वैल्यू हमें दी हुई है रूट 2 प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू में हम निकाल लेते हैं. तो अगर x रूट 2 प्लस 1 है तो 1 अपॉन x कितना होगा? 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1. ठीक है, रैशनलाइज कर देते हैं. रैशनलाइजेशन के लिए मल्टीप्लाई बाय रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1. ठीक है, क्या आ गया? न्यूमिनेटर आया रूट 2 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, 2 माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर. ये तो 1 ही बन गया. तो 1 अपॉन एक्स कितना आ गया? रूट 2 माइनस 1. तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स क्या है? रूट 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्या है? रूट 2 माइनस 1. सो दिस इज रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 माइनस माइनस प्लस. तो दिस इज 2. सो आंसर इज 2. ठीक है, इसी का और पार्ट 27 to the power minus 1 upon 3 into 27 to the power 1 upon 3 minus 27 to the power 2 upon 3. अब 27 को ध्यान से देखें तो क्या है ये एक्चुअली? 3 की पावर 3 है ना. इसकी भी पावर माइनस 1 अपॉन 3, राइट. ऐसे ही इसको लिखा 3 की पावर 3 की पावर 1 अपॉन 3 माइनस 3 की पावर 3 की पावर 2 अपॉन 3. राइट, ये क्या आ गया? 3 की पावर माइनस 1 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 2. ठीक है, दिस इज 3 की पावर माइनस 1 मतलब 1 अपॉन 3. 3 माइनस 3 स्क्वायर इज 9. क्या आ गया? माइनस 6 अपॉन 3 दैट इज माइनस 2. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. From the given figure, write the coordinates of point A, B, C and D. तो coordinates लिखने हैं. सबसे पहले A से स्टार्ट करते हैं. भाई x एक्सेस पर लाई कर रहा है. x कोऑर्डिनेट कितना है? 0 1 2 3 4 5. ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 5 क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है. y कोऑर्डिनेट, भाई x एक्सेस पर लाई कर रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या है? 0. ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 5, 0. नाउ b के कोऑर्डिनेट्स, भाई x कोऑर्डिनेट अभी अभी देखा कितना है? 5. y कोऑर्डिनेट 0 1 2 3 है ना, और अबव द ओरिजिन है तो पॉजिटिव, तो 5, 3. इसके बाद c के कोऑर्डिनेट्स, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट कितना है? 0 1 2 और नेगेटिव डायरेक्शन में, ओरिजिन के लेफ्ट में, तो -2. एंड y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 1 2 3 4 है ना, और पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव. अब बचा d के कोऑर्डिनेट. सबसे पहले तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 एंड y कोऑर्डिनेट 0 1 2, दैट टू बिलो द ओरिजिन मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन, सो -2. So these are the coordinates. Next question. In the given figure, if AB is parallel to CD, angle APR is 70 degree and angle PRD is 137 degree, find x and y. अब अगर फिगर में देखें एक्चुअली में QPR दिया हुआ है 70 डिग्री, APR नहीं, सो यहाँ पे आएगा QPR. x फाइंड करना है. ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल
किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, मतलब 70 डिग्री प्लस x। ठीक है, तो यहाँ से x निकाल लेते हैं। कितना आएगा x? 137 माइनस 70 दैट इज 67 डिग्रीज, राइट। अब x आ गया हमारे पास, y कैसे निकालें? देखो y है ये वाला एंगल, और हमें गिवन है दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ये लाइंस पैरेलल और ये क्या आ गए? ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल्स कैसे हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो y इज इक्वल टू x, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स है। So y is also 67 degree. These are the answer. All right. Next question. In the given figure, angle PQR is equal to angle PRQ. मतलब these two angles are equal. मतलब ये x तो ये भी x. Then prove that angle PQS is equal to angle PRT. PQS और PRT को इक्वल प्रूफ करना है, तो निकाल लेना एंगल्स को। भाई अगर ये x है, ये तो लीनियर पेयर बन रहा है ना, ये x तो ये कितना होगा? 180 माइनस एक्स। ऐसे ही ये x तो ये कितना होगा? 180 माइनस एक्स। अब 180 माइनस एक्स और 180 माइनस एक्स तो इक्वल है, मतलब एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ऑलराइट, next question. Grow more and more trees to save environment. The students of each class of a school from 6th to 10th planted 50 plants in various parts of school campus. After a month, plants survived which are planted by students of different classes are given below. मतलब क्लास 6th के बच्चों के 40 प्लांट सर्वाइव किया आउट ऑफ 50, 7th के 48, 8th के 42, ऐसे ही इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ लेस देन 40 प्लांट्स विच आर प्लांटेड बाय अ क्लास। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की सर्वाइवल ऑफ लेस देन 40 प्लांट्स कितनी होगी? भाई लेस देन 40 प्लांट्स कौन सी क्लास के हैं जो सरवाइव कर पाए? 6 के तो 40 कर गए, 7th के 48, 8th के 42, 9th के 39, 40 से कम। ठीक है, सो 1 क्लास आउट ऑफ 5 क्लासेस ऐसी हैं जिसके 40 से लेस प्लांट्स सरवाइव किए। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/5। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, probability of survival of 49 plants which are planted by a class. एक क्लास जिसके 49 प्लांट्स सर्वाइव कर गए हों। भाई 49 प्लांट्स तो किसी के भी सर्वाइव नहीं करे, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है। सो प्रोबेबिलिटी इज 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 25, फैक्टराइज a क्यूब माइनस 5√5 b क्यूब। ठीक है, अब फैक्टराइज करना है। क्या क्या लग रहा है इसको देख के? दिस इज a का क्यूब माइनस ये √5b का क्यूब है ना। और ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई? x क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है? x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। तो ये क्या आया? a माइनस √5b इंटू एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब √5b स्क्वायर, क्या बन गया? 5b स्क्वायर प्लस एक्स वाई मतलब a इंटू √5b मतलब √5ab. So these two are the factors. Question number 26. In triangle ABC, ABC एक ट्राइंगल है,
AD is the perpendicular bisector of BC. AD ड्रॉ करा and this is perpendicular bisector of BC. मतलब BD is equal to DC and this angle is 90 degree. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which angle B is equal to angle C. हमें इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है, तो कैसे करें? आइसोसेलेस प्रूफ करना है मतलब AB को AC के इक्वल प्रूफ कर दें, दो साइड्स इक्वल तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगी. अब कैसे करें? अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, BD इज इक्वल टू CD गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री ईच एंड AD कॉमन साइड बाय साइड एंगल साइड रूल. triangle ABD is congruent to triangle ACD. अब अगर triangles congruent तो इनके corresponding parts भी equal. corresponding parts हमें कौन से चाहिए? AB and AC. AB AC के equal मतलब angle B angle C के equal. ठीक है, तो triangle isosceles prove हो गई. Question number 27. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. सबसे पहले quadrilateral बनाया ABCD. This is ABCD. P midpoint है AB का, Q midpoint है BC का, R midpoint है CD का and S is the midpoint of DA. AC is a diagonal. AC को भी ज्वाइन कर दिया. Show that first part SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. अब मिड पॉइंट्स की बात हो रही है तो सबसे पहले ध्यान में क्या आती है? मिड पॉइंट थ्योरम. अब मिड पॉइंट थ्योरम तो एक ट्रायंगल में लगती है. कौन सी ट्रायंगल में लगाएं? देखो S मिड पॉइंट है AD का एंड R मिड पॉइंट है DC का, तो ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं. है ना? इन ट्रायंगल DAC, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC. Therefore, by midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is half of AC. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया. सेकेंड, PQ इज इक्वल टू SR. अब PQ SR के इक्वल है. P मिड पॉइंट है BA का एंड Q मिड पॉइंट है BC का. तो अगर इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ABC, अगेन मिड पॉइंट थ्योरम से PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. है ना? अब SR भी AC का हाफ, PQ भी AC की हाफ, therefore SR is equal to PQ. ठीक है. थर्ड पार्ट, PQRS is a parallelogram. PQRS ये एक पैरेललोग्राम है, प्रूव करना है. अभी अभी देखा भाई, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल. PQ इज पैरेलल टू SR एंड ये भी अभी प्रूव किया दैट PQ इज इक्वल टू SR. अब एक क्वाड्रिलेटरल
जिसकी one pair of opposite sides are parallel as well as equal. Therefore, PQRS is definitely a parallelogram. Alright. Question number 28. Prove that equal chords of a circle subtend equal angles at the center. So, एक circle है with center O. इसकी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो दो इक्वल कॉर्ड्स बनाते हैं. एक तो ये रही ए बी, एक ये है पी क्यू. ठीक है, तो हमारे पास गिवन है दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ. प्रूव हमें क्या करना है, दैट दीज कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. तो सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, ये एंगल ए ओ बी. इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, एंगल पी ओ क्यू के. अब कैसे करें इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ. भाई ट्राइंगल्स बन रही हैं तो सबसे पहले ध्यान में आती है कॉन्ग्रुएंसी लगा लेते हैं. कॉन्ग्रुएंसी लग भी सकती है, क्यों, ए बी पी क्यू के इक्वल, ओ ए ओ क्यू के इक्वल, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, एंड ओ बी ओ पी के इक्वल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. सो बाय साइड 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 रूल दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई. ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी क्यू. अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल. देयरफॉर एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा, एंगल पी ओ क्यू के बाय CPCT. Hence, equal chords of a circle subtend equal angles at the center. Next question. In the given figure, O is the center of the circle. Angle ABO is 20 degree and angle ACO is 30 degree, where ABC are points on the circle. Find the value of x. x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. अब x की वैल्यू ध्यान से देखें, अगर दिस इज एंगल BOC एंड BOC सेंटर पे बनने वाला एंगल है, और कौन सी आर्क बना रही है, BC आर्क. अब BC आर्क क्या कोई और एंगल भी बना रही है, रिमेनिंग पोर्शन पे बना रही है एंगल BAC, है ना. और हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें तो डेफिनेटली हम ये वाला एंगल भी निकाल लेंगे. अब ये वाला एंगल कैसे निकालें, इसका कुछ कुछ पार्ट निकाल लेते हैं. ये वाला देखें कितना है भाई, देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, मतलब दोनों इक्वल. ये 20 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री. ऐसे ही ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, मतलब दोनों इक्वल. तो इनके ऑपोजिट एंगल्स, ये 30 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री. ठीक है, तो एंगल BAC कितना होगा, 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री. ठीक है, और एंगल BAC आ गया तो एंगल BOC कितना होगा, ट्वाइस ऑफ 50 डिग्री, मतलब 100 डिग्रीज. All right. Next question. If the polynomial p of x is equal to this, when divided by x minus 1 leaves remainder 28, then find the value of b. अब रिमाइंडर की बात हो रही है तो सबसे पहले ध्यान में आती है रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, if a polynomial p of x is divided by a linear polynomial x minus a, देन रिमाइंडर इज p ऑफ a, है ना. अब
पॉलिनॉमियल यहाँ पे दिया हुआ है p ऑफ x x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7 प्लस 3b. इट इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 1. तो रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ 1. तो p ऑफ 1 निकाल लेते हैं. p ऑफ 1 कितना होगा? x की जगह पे डाला 1, क्या आ गया? 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 3b. एंड रिमाइंडर इज गिवन टू बी 28. ठीक है, यहाँ से इवेल्युएट किया, क्या आ गया? माइनस 14 प्लस 3b इज इक्वल टू 28. सो 3b इज इक्वल टू 42 और b क्या आ गया? 14. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Construct a triangle ABC in which angle B is equal to 60 degree, BC is equal to 6.5 centimeter and AB plus AC is equal to 10 centimeter. तो again construction of triangle का question है. अब triangle कैसे construct करते हैं? सबसे पहले BC दी हुई है तो BC बनाएंगे. 6.5 सेंटीमीटर. अब एंगल बी दिया हुआ है 60 डिग्री. 60 डिग्री सबको कंस्ट्रक्ट करना आता है. एक आर्क लगाई, इतनी खुली रखी, दिस इज 60 डिग्री. ठीक है, अब ए बी सी ट्राइंगल बनाने के लिए ए पॉइंट चाहिए. अब अगर ए बी लेंथ होती तो हम आर्क लगाते, ट्राइंगल बन जाती. पर अब ए बी लेंथ नहीं गिवन, हमें गिवन है ए बी प्लस ए सी. तो ए बी प्लस ए सी की आर्क लगा लेते हैं 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे कंपास रख के 10 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी. दिस इज पॉइंट डी. ठीक है, अब ए कहाँ है? ए इस लाइन पे कहीं लाई करेगा, है ना? से यहाँ पे ए है. क्यों? क्योंकि ये ए बी प्लस ए सी. ठीक है, अब ये भी ए सी है और ये भी ए सी है, मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस तो इक्वल हैं. मतलब A एक ऐसा पॉइंट है विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम D एंड C. अब अगर वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है तो वो कहाँ लाई करेगा? ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC. तो अब DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको बनाना आता है. अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम D एंड C. पर हमें कौन सा पॉइंट चाहिए? जो इस लाइन पे भी लाई कर रहा हो, मतलब ये वाला पॉइंट. तो दिस इज पॉइंट A विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम D एंड C. और ये बनेगी ट्राइंगल ABC. ऑलराइट, question number 31. The sides of a triangular plot are in the ratio 13:12:5 and its perimeter is 450 meter. Find its area. तो एरिया निकालना है साइड्स की हेल्प से. क्या लगाएंगे? हेरॉन्स फॉर्मूला. सबसे पहले तो साइड्स ही निकाल लेते हैं. साइड्स की रेशो दी हुई है तो लेट साइड्स भी 13x 12x एंड 5x. ठीक है, पेरीमीटर इज 450 मीटर, मतलब 13x प्लस 12x प्लस 5x इज इक्वल टू 450 मीटर. यहाँ से x की वैल्यू निकालें, क्या आ गया? 30x इज इक्वल टू 450. तो x कितना आ गया? 15. तो साइड्स कितनी आ गई? 13 इंटू 15 195 मीटर, 12 इंटू 15 180 मीटर एंड 5 इंटू 15 75 मीटर. साइड्स आ गई हैं तो अब एरिया निकाल लेते हैं. एरिया क्या होगा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर कितना है? 450 अपॉन 2 दैट इज 225 मीटर. तो 225 इंटू 225 माइनस 195 कितना आ गया? 30 इंटू 225 माइनस 180 मतलब 45.
इंटू 225 माइनस 750 दैट इज़ 150. ठीक है, अब कैसे इवेल्युएट करें? 225 तो पता है हमें 15 स्क्वायर होता है. 30 को लिख लेते हैं 15 इंटू 2. 45 को लिख लेते हैं 15 इंटू 3. और 150 को क्या लिखें? 15 इंटू 10. अब 15 तो 2 बार आ रहा है, और हमें क्या चाहिए? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 15 को लिखें 3 इंटू 5, और 10 को लिखते हैं 2 इंटू 5. ठीक है, तो 15 आएगा बाहर, मल्टीप्लाई 15 बाहर, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 5. ठीक है, इसको कैलकुलेट किया, दिस इज 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया. Question number 32. Mean of 50 observations is 12. One observation 47 was misread as 74. Find the correct mean. तो mean of 50 observations दिया हुआ है. मान लो observations हैं x1, x2, x3 and so on up to x50. ठीक है, इनका mean मतलब sum of observations upon number of observations. number of observations कितनी है? 50. this is equal to 12. तो यहाँ से क्या आ गया? x1 plus x2 plus x3 up to so on x50 is equal to 12 into 50, that is 600. ठीक है, this is the sum of observations. पर ये correct sum नहीं है. क्यों? because 47 was misread as 74. मतलब 74 तो गलत ऐड किया हुआ, 74 को हटाना है और 47 को ऐड करना है. ठीक है, तो करेक्ट सम क्या होगा? 600 माइनस 74 प्लस 47, है ना? ये कितना आ गया? 573. सो दिस इज द करेक्ट सम. अब करेक्ट मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. करेक्ट सम कितना है? 573 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 50. तो कितना आ गया? 11.46. This is the answer. Next question. The number of women working in a factory are given below. Age group के according 20 to 25 में number of women are 120, 25 to 30 में number of women are 115 and so on. This data is given. Draw histogram of the above data. इसका histogram बनाना है तो बना लेते हैं. Continuous class intervals दिए हुए हैं. सबसे पहले एक्सेस बनाए. एक्स एक्सिस पे लेते हैं एज ग्रुप इन ईयर्स एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ वुमेन. एज ग्रुप कैसे? 20 to 25, 25 to 30 ऐसे क्लास इंटरवल्स हैं. तो ये तो ज़ीरो है. सबसे पहले तो किंक लगाया सो दैट एक्सेस थोड़ी सी कंप्रेस हो जाए. दिस इज 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50. ठीक है, तो अब वाई एक्सेस का स्केल डिसाइड करते हैं. कैसा लें? दिस इज 120, 115, 168, 180, 130, 146. तो कैसा लें? 50-50 का ले लेते हैं. दिस इज 50, 100, 150, 200. फर्स्ट इज 20 to 25 के बीच में 120. 120 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं. ठीक है, दिस इज 120.
फिर है 115, 115 इससे थोड़ा सा नीचे, 168 यहाँ कहीं, 180, 200 से थोड़ा नीचे, 130, एंड 146, 150 से बिल्कुल थोड़ा नीचे। ठीक है, ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. तो एक सर्कल है, with center O, इसकी एक chord AB रेडियस के इक्वल है, मतलब OA is equal to AB is equal to OB. ठीक है, we have to find the angle subtended by the chord. इस chord ने एंगल बनाया है जो एट पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क कौन सी है, ये छोटे वाली, इस पे कौन सा एंगल बनाया, ये वाला AQB, एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। मेजर आर्क ये बड़े वाली आर्क, इस पे भी कोई एंगल बनाया होगा, दिस एंगल APB. We have to find angle APB and angle AQB. अब कैसे फाइंड करें, क्या कोई एंगल हमें पता है, ये हमें दिख रहा है कैसी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसके हर एंगल पता है हमें, 60 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब AB आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो रिमेनिंग पोर्शन पे कितना बनाएगी, उसका हाफ, है ना, मतलब एंगल APB क्या होगा 60 डिग्री का हाफ, दैट इज 30 डिग्री। तो एक एंगल तो आ गया हमें। नेक्स्ट AQB, AQB ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ध्यान से देखें, अगर हम PAQB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खास प्रॉपर्टी होती है दैट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री, देयरफॉर 30 डिग्री प्लस एंगल AQB इज 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल AQB कितना आ गया 150 डिग्री, तो मतलब माइनर आर्क पे कितना एंगल बना रही है कॉर्ड 150 डिग्री। सो AQB भी हमने फाइंड कर लिया। सो दिस वाज द क्वेश्चन। Question number 34. A soft drink is available in two packs. Pack 1, a tin can with rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having a height of 15 cm. तो बनाए पहले, देखें ये कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर बेस है, मतलब कैसा होगा, क्यूबॉइडल, है ना, ऐसा होगा। पैक 2 है, अ प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 cm एंड हाइट 10 cm, ये सिलेंड्रिकल है। ऐसे दो पैक्स में अवेलेबल है, इसके डायमेंशंस क्या हैं, ये 5 cm लेंथ, 4 cm ब्रेड्थ एंड 15 cm हाइट।
इसमें डायमीटर 7 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर. Question is, which container has greater capacity and by how much? कैपेसिटी चेक करनी है, मतलब वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं. तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. ठीक है, ये कितना आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब. ये तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कैन है. इसके बाद सिलेंड्रिकल कैन की वॉल्यूम देख लेते हैं कितनी होगी, पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट. इसे कैलकुलेट किया, ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब. तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, सिलेंड्रिकल कैन की, मतलब पैक 2 हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी. और कितनी ज़्यादा है 385 माइनस 300, दैट इज़ 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच. अब दोनों का सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं. सरफेस एरिया ऑफ सबसे पहले क्यूबॉइड का कितना होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स 20 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब 4 इंटू 15 60 प्लस हाइट इंटू लेंथ, मतलब 15 इंटू 5, दैट इज 75. तो ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ 155, दैट इज 310 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट पैक. सेकेंड पैक का कितना होगा सरफेस एरिया, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. ठीक है, इसे भी कैलकुलेट करोगे, क्या आ जाएगा 297 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सरफेस एरिया पैक 1 का ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है 310 माइनस 297, दैट इज़ 13 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 35. If 3 plus root 5 upon 3 minus root 5 plus 3 minus root 5 plus upon 3 plus root 5 is equal to a plus root 5b, then find the values of a and b. अब ये तो बड़ा डेंजर मामला लग रहा है ना. इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. क्या करें, एलसीएम ले लें. एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में आया 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5. ठीक है, न्यूमिनेटर में क्या आएगा 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू a प्लस रूट 5b. ठीक है, तो आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर. किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो मतलब ट्वाइस ऑफ 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस रूट 5 स्क्वायर, दैट इज 5, अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 5. ठीक है, दिस इज इक्वल टू a प्लस रूट 5b. क्या आ गया, दिस इज 4 एंड दिस कैंसल्स आउट. क्या आ गया 7 इज इक्वल टू a प्लस रूट 5b. अब यहाँ से अगर कंपेयर करें, a किसके इक्वल है 7, और b इसको लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू रूट 5. b किसके इक्वल है 0. सो दिस इज द आंसर.
क्वेश्चन नंबर 36, prove that sides opposite to equal angles of an isosceles triangle are equal. तो एक isosceles triangle हमें गिवन है, इसके इक्वल एंगल्स हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. हमें प्रूव करना है दैट AB इज इक्वल टू AC. अब कैसे प्रूव करें? कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, है ना, जिसमें साइड्स इन्वॉल्व हो जाएं. सो व्हाट आई डू, I drop a perpendicular from A on BC. ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया. ठीक है, तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें, ये एंगल 90 डिग्री ईच, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल गिवन है, और ये कॉमन साइड है AD. एंगल B is equal to angle C, angle ADB is equal to angle ADC, and AD is equal to AD, common side. So by angle side rule, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC. अब अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल, मतलब AB is equal to AC. और यही तो हमें प्रूफ करना था. Hence is the proof. Next question. In the given figure, AB and CD are perpendiculars on BD. Also, AB is equal to CD and AF is equal to CE. Prove that BE is equal to FD. अब BE और FD किसी ट्राइंगल का पार्ट्स तो नहीं बन रहे जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो क्या करें? देखो, हम BF को ED के इक्वल प्रूफ कर दें तो ये कॉमन पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, BE FD के इक्वल आ जाएगी. अब BF और ED तो ट्राइंगल के पार्ट बन रहे हैं, दिस ट्राइंगल and this triangle. In triangle ABF and triangle CDE, ध्यान से अगर हम देखें, AB is equal to CD गिवन है, AF is equal to CE ये भी गिवन है, and angle ABF is equal to angle CDE, each is 90 degree. ठीक है, तो बाय राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, बाय RHS रूल, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी. ट्राइंगल ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDE. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स BF इज इक्वल टू DE. अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसमें से कुछ इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस EF माइनस EF, क्या आएगा? BF माइनस EF दैट इज BE इज इक्वल टू DE माइनस EF दैट इज FD. और यही तो हमें प्रूफ करना था. सो द क्वेश्चन इज डन हियर and this was the last question. Our paper is complete.